Chapter 2 Sankhya Yoga. Seeing in front of him his own relations and friends in war, Arjun is sad and confused. He can't decide what to do, and so requests Lord Krishna to guide him, to tell him the right path. Krishna, upon hearing his plead, preaches to him that whoever has come into this world will die for sure, as no one is immortal. Intelligent people don't mourn death, as they know it is inevitable. As a Kshatriya, it is his duty to protect his people, or he will be called a coward. Whether he dies or wins, both are in Krishna's hands. One should perform his duties and never wait for results. Krishna then explains that the body has not 3, but 4 stages: infancy, adulthood, old age, and finally, death. The human body is not immortal. It's the Atma inside that is immortal. When our clothes are worn out, we throw them and get new ones. In the same way, Atma leaves the worn out body and enters a new body. Atma is immortal. Weapons can't cut it. Fire can't burn it. Wind can't dry it. And water can't drench it. The soul is unmanifest, unthinkable, unchangeable. Whoever is born, his death is fixed. Abandoning war, you will lose your reputation and be called a coward. If you win, you'll enjoy victory. If killed, you will attain heavens. So perform your duties without worrying about the results. Turbulent by nature, the senses carry away even the man who practices self-control. The man dwelling in sense objects develops attachment and hence gets desires. And desires convert into anger. Anger leads to delusion. Delusion confuses memory. And that leads to loss of discrimination, which ends one up to perish. With a disciplined mind, we get free from likes and dislikes. Hence we attain a tranquil mind, and all sorrows come to an end. The way water from rivers enters the ocean and gets undisturbed, the same way, when all desires merge themselves, the man attains unparalleled peace. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna. ऋषिकेशं गुडाकेशे पर
देवाहं जातुनासं न त्वं मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं तेनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत यज्ञेन व्यथयन् ये पुरुषं पुरुषशव समादुःख सुखं वीरं सोमितद्वाय कल्पते वासन्ति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थेन त्वं शोषयितुमर्हसि
व्रजेत किं यदा सहारदचायम् कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपेष्टिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवमना तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गेषु शुभजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इन्द्रियाणां निकरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति तत्त्वकामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी दूसरा अध्याय सांख्य योग। अपने रिश्तेदारों और बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गया और वो समझ नहीं पाया कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तब उसने श्री कृष्ण को कहा, हे भगवान, आप मुझे मेरा मार्ग प्रदर्शित करें। कृष्ण ने जब यह सुना तो उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा ही, क्योंकि कोई भी अमर नहीं है और विद्वान लोग कभी भी मौत से दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो होनी निश्चित है। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने लोगों के लिए अपने प्राण देने को भी तत्पर रहे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर वो इस युद्ध में जीतता है तो वो राजपाट करेगा, और अगर वो मर जाता है तो वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसने अपने देश, अपने राज्य और धर्म को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। इंसान के शरीर के 3 नहीं बल्कि 4 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। लोग मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, लेकिन सबकी मृत्यु निश्चित है। जो चीज अमर है वो है हमारी आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर होती है। जिस तरह जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें फेंक कर नए वस्त्रों का धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अमर है, ना शस्त्र उसे काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न वायु उसे सुखा सकता है और न जल उसे भिगा सकता है। आत्मा स्थिर है
कभी बदल नहीं सकती। जो भी आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो एक कायर कहलाओगे, लेकिन अगर युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग जाओगे। इसलिए अपने धर्म का पालन करो और परिणाम की चिंता मत करो। मनुष्य की इंद्रियां बहुत ही अस्थिर और अशांत होती हैं और आत्म संयम का अभ्यास करने वाले को भी भटकाने में सक्षम रहती हैं। और जो इंसान आत्म संयम नहीं बरतता, उसकी इंद्रियां उसके मोह को क्रोध में बदल देती हैं। फिर वो क्रोध विभ्रम में बदल जाता है, विभ्रम विवेक का नाश करता है और उसके बाद उस इंसान का ही सर्वनाश हो जाता है। एक स्थिर मन से हम इन सब से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो और अपने दुखों का अंत करो। जैसे विभिन्न नदियों का जल समुद्र में जाके शांत हो जाता है, वैसे ही अलग अलग इंद्रियों में जब स्थिरता आती है तो मन में असीम शांति का अनुभव होता है।